that is H2 M2 है ना. So first we will start Yes, from sir. the question. Last जो क्वेश्चन दिया था वहीं से स्टार्ट करेंगे. We will start from the homework question है ना. Visible? Yes, sir. Yes. बताओ भाई. First A for absolute error A1 is given. A1 कितना है? It's 5. A2 is given कितना? A2 is 5.2. A3 is 4.6. A4 is 4.8. 4.9. A5 is 4.9. So AM कितना आ रहा है बताओ. What's AM? मीन कितना आ रहा है? बोलो. मीन कितना आ रहा है? 7.2. हाँ. मीन कितना आ रहा है? 7.2. 5 से ऊपर चला गया. 4.9. 4.9. 4.9 आ रहा है. Yes, sir. चलो. Yes. Now we will take out delta A1. Delta A1 will be 5 minus 4.9. It's 0.1. Delta A2 is 5.2 minus 4.9 equals to 0.3. Delta A3 is 4.6 minus 4.9. It's 0.3 because it's mod. So we will take only positive value. Delta A4 is delta A4 कितना आ रहा है? It's 4.8 minus 4.9 equals to 0.1. Delta A5 4.9 minus 4.9. It's 0. Delta AM, what is delta AM? 0.1 plus 0.3 plus 0.3 plus 0.1 कितना हो रहा है? 0.8 by 5. So it's 0.16. Clear है? Is it matching with your answer? Match कर रहा है? Yes. So this is your answer for A part. For A part ये आ गया आंसर आपका. ठीक है. For B part में तो कुछ करना ही नहीं होता यार. Delta AM by AM it's 0.16 divide by AM कितना निकाला था? It was 4.9. So you can solve it. इसको solve कर सकते हो. And what is percentage error? That is delta AM by AM into my 100. So that will give you the percentage. So that will be 16 upon 4.9%. Clear? तो ये आंसर है इसका. इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? चलो नोट कर लो इसे. तो यहाँ तक हो गया था. नाउ ओनली रिमेनिंग पार्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स निकालेंगे. वी विल टेक आउट कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स. क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल एरर के? कॉम्बिनेशन ऑफ errors. So following combination of error are possible. First one is Z. Z is a combination है ना. Z can be sum of two or more than two terms है ना. Z can be the combination of sum of two or more than two. It can be 2, 3, 4, A plus B plus C plus D कुछ भी हो सकता है. और Z can be subtraction of two terms or two quantities. Or Z can be in multiplication of two or more than two terms. Or Z can be in division of two or more than two terms है ना. एंड जनरल में लास्ट वाला ले लेता हूँ कि Z can be at any power of A to the power X, B to the power Y, C to the power T, कुछ भी ले सकते हो है ना. So following combination are possible. Following combinations are
पॉसिबल. तो वी विल टेक द कॉम्बिनेशन वन बाय वन, एक एक करके हम सारे कॉम्बिनेशन को डील करेंगे, है ना. फर्स्ट नोट डाउन कॉम्बिनेशन वन, है ना. सबसे पहले नोट करो कॉम्बिनेशन नंबर वन, ठीक है. इसको नोट कर, नोट इट डाउन. फर्स्ट कॉम्बिनेशन z is equals to a plus b. The first combination is z is equals to a plus. Clear? हो गया. First we will take z is equals to a by b. इसको closely observe करना. You can write अच्छा a को write, you can write a is equals to a naught जो real value है plus minus error of a. Clear? इसको कोई problem? Any problem with this? बोलो. b को you can write the actual value plus minus error of b. z को you can write actual value plus minus error of z. And z naught is equals to a naught plus b naught without error the real values. Clear है कि नहीं? Actual value जो थी, है ना? So now you can put the values. Z को you can write z naught plus minus delta z. A को you can write a naught plus minus delta a. B को you can write b naught plus minus delta b. Clear? तो यहाँ से z naught, a naught and b naught that will cancel, है ना. Z naught is equals to a naught plus b naught, so it will get cancelled. So delta z is equals to delta a plus minus delta b plus minus plus minus. So whenever we take error, जब भी error लेंगे, error maximum लेते हैं, we always take maximum error with a positive sign. Positive sign. We will only take positive sign. So delta z is equals to delta a plus delta b. We will only take positive sign. We never take the negative sign. Negative sign कभी नहीं लेंगे, ठीक है. We will never take the negative sign. So this will be the error. Error of addition is delta z is equals to delta a plus delta b. ये याद रखना, error हमेशा क्या होगा? It will always be less than 10%. Clear? 10%. It should be less than 10%. Clear, sir. Subtraction. अगर इसे तुम अपने आप करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा. ट्राई करोगे, चलो साथ में कर लेते हैं. सेकेंड वन इज z is equals to a minus b. Again you can write क्या? a is equals to a naught, थोड़ा सा राइट में ले लो, कटेगा वरना. a is equals to a naught plus minus delta a. b is equals to b naught plus minus delta b. अच्छा एक्चुअल में a को a प्लस माइनस डेल्टा a ही लिखते हैं. मैं तो a नॉट इसलिए लिख रहा हूँ जस्ट टू गिव यू फील कि a नॉट इज द एक्चुअल वैल्यू. वैसे लिखा यही जाता है. इन योर बुक यू विल सी दैट a इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है. लेकिन फिर तुम कहोगे इससे कट गया, डेल्टा a जीरो, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं बस, है ना. समझ गए? अदरवाइज a को लिखा ऐसे ही जाता है. यू विल ऑलवेज राइट a इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a. क्लियर? Clear, sir. z is equals to z naught plus minus delta z, and z naught is equals to a naught minus b naught. Clear? So you can write z is equals to z naught plus minus delta z. A is equals to a naught plus minus delta a minus b naught plus minus delta b. Clear? So when you take out the sign, delta z is equals to a naught plus minus delta a minus b naught minus plus delta b. So a naught, b naught, z naught चला गया. So delta z is equals to plus minus delta a minus plus delta b. So when you take out only plus sign, doesn't matter कि उससे क्या क्या sign कहाँ पे है. Error लेंगे, still you will get the plus sign, है ना, plus sign. So delta z is equals to delta a plus delta b. Same result आएगा, just like addition. In case of subtraction,
you will get the same result. You will add the error. ठीक है, whether it is addition or subtraction, in the both cases you will get the same result. ठीक है, समझ गए? यस सर। चलो नोट कर लो, अगला वाला देखते हैं। एक्सेस मल्टीप्लिकेशन, third one is just like addition and subtraction will be having the same result, in the same way multiplication and division will also be having the same result. फाइनल रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, z is equals to a into में b. Again you can write क्या, you can write a is equals to a naught plus minus delta a, b is equals to b naught plus minus delta b, और z is equals to z naught plus minus delta z, and again z naught is equals to a naught into में b naught. Clear? अच्छा, एक चीज याद रखना, when you multiply two smaller values, you will get much smaller value. Suppose error है 0.01, when you multiply this error with another smaller error like 0.02, you will get 0.0002, है ना, very small, है ना, very small. So whenever you multiply two terms which are having small value, the final result become much more smaller. For example, when you multiply delta a into delta b, it will be much smaller, है ना, much smaller. इतना छोटा होगा that can be neglected. दो छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके you will get इतना छोटा वैल्यू that you can neglect that value, है ना। अब बताओ z का वैल्यू रखेंगे, z is equals to z naught plus minus delta z, a is equals to a naught plus minus delta a, b is equals to b naught plus minus delta b। ठीक है, सबसे कॉमन ले लो, इससे z naught बाहर ले लो, z naught 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z naught इज इक्वल्स टू a naught, यहाँ से बाहर ले लो, टेक आउट a naught, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a naught, b naught यहाँ से बाहर ले लो, इट विल बिकम 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b naught, ऐसे आएगा। ठीक है, और a naught b naught मल्टीप्लिकेशन विल गेट कैंसिल बाय z naught। फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 प्लस डेल्टा z बाय z naught is equals to, when you multiply this, 1 plus minus delta a by a naught plus minus delta b by b naught and plus minus delta a into में delta b upon में a naught by b naught, है ना ये। तो this value a naught into में b naught is very small, तो इसको neglect कर सकते हो, you can neglect this value। फाइनल आंसर क्या आएगा, this। अब z naught को you can write z, a naught b naught को you can write, एक्चुअल में वो a और b होते हैं, तो 1 यहाँ से हट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट यू विल गेट अ रिलेटिव एरर डेल्टा z बाय z। z नॉट को मैं z ही लिख दे रहा हूँ, जो एक्चुअल में होता है डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। आई विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन, सिर्फ पॉजिटिव साइन, एरर में यू विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन, है ना, प्लस साइन। तो क्या आएगा, डेल्टा z बाय z is equals to delta a by a plus delta b by b। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे we will get relative error, सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा, relative error ही मिलेगा, है ना, relative error। कुछ पूछना है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में you will always get relative error, कभी भी आपको प्लस माइनस वाला सीन नहीं मिलेगा, you will only get relative error। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो फोर्थ वाला डिवीजन वाले से पहले बाइनोमियल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये भी आपने मैथ्स में पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको पढ़ाना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन।
इसका मतलब बहुत सिंपल होता है. If expression is like this, suppose expression is 1 plus a by b to the power x, and a is very very less than b. What does that mean by very very less than b? It means a is less than 10% of b. ठीक है, that mean error होगा तो it is applicable, है ना. This is applicable in case of error. So you can write this term as x will land a by clear. That's all about binomial expansion. For example ले लेते हैं. We will take the example. Suppose you have 1 plus 2 by 100 का स्क्वायर, है ना. 2 by 100 का स्क्वायर. कैलकुलेटर से करके बताओ किसका स्क्वायर कितना आ रहा है, एग्जैक्टली कितना आ रहा है बताओ. कैलकुलेटर से कितना आ रहा है. कैलकुलेटर से तो कर लोगे ना. 1.02 का होल स्क्वायर, 1.02 होल स्क्वायर, है ना. 1.02 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है वो तो. मोबाइल चलाना आता है, उसे करो. उससे नहीं करने को दे रहा है, कैलकुलेटर से करके बता दो, जल्दी से बता दो. वैसे तो ये ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है. 1.44 1.04 सही है इतना. गलत बता रहे हो. सर 1.04 ये बताना पड़ेगा, ठीक है. कंप्लीट बताना, राउंड ऑफ मत करना, नहीं तो फिर 1.04 तो बाइनोमियल से भी आ जाएगा, ठीक है. नाउ वी विल अप्लाई द बाइनोमियल अप्लाई करेंगे. as 2 is very very less than 100, so you can apply the binomial. So 1 plus 2 by 100 का होल स्क्वायर will this power will land 2 into में 2 हो जाएगा by 100. So you will get कितना वैल्यू 1.04. समझ गए. तो इट इज नियरली इक्वल टू द एग्जैक्ट आंसर. लेकिन बाइनोमियल लगा दिया तो देखो स्क्वायर नहीं करना पड़ा, है ना. लेकिन दिस इज नॉट फॉर स्क्वायर के लिए नहीं होता. ये खतरनाक पावर जो होती है 3/8, 11/12 ऐसे कुछ पावर होगी, उसके लिए दिस इज एप्लीकेबल, है ना. वरना स्क्वायर के लिए क्यों ही यूज करेंगे, है ना. अब देखो और क्या यूज कर सकते हैं इसका. सपोज इफ यू हैविंग एक नंबर है तुम्हारे पास, एक और एग्जांपल देता हूं मैं. यू हैविंग 1003 का पावर 1/3 लेना है. बताओ कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको, सोच के बताओ. बाइनोमियल का यूज करना, यूजिंग बाइनोमियल. चाहो तो पहले कैलकुलेटर से करके देख लो. फिर बाइनोमियल से करेंगे. पहले तुम ट्राई मार लो सर कैसे करेंगे. We can make this term like this: 1000 plus 3 to the power 1/3. So you can take out 1000 as common. 1000 when you take out बाहर ले लोगे तो you have to apply the power. When it comes out the bracket के बाहर जैसे आएगा, you have to take this 1/3 as a power. So 1 plus 3/1000 to the power 1/3. As 3 is very very less than 1000, now you can apply the binomial. So this term 1000 to the power 1/3, that will be 10, and 1 plus 3/1000 to the power 1/3, this 1/3 will land. So the final answer will be 10 into 1 plus 1/3 will land here. So this is 3/1000. That is equals to कितना हो जाएगा बताओ. 10 into में 1.001. clear. 001. So answer is 10.01. देखो मैच कर रहा है. इज इट मैचिंग? मैच कर रहा है. आप कैलकुलेटर से करते तो कितना आता? अगर कैलकुलेटर से करते तो कितना आता?
बताओ, कैलकुलेटर से करते तो कितना आता? चलो कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा, आई एम टेकिंग पावर। इसको तो चलो ये नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, इसमें नहीं आएगा, छोड़ो। कैलकुलेटर से करके कितना आ रहा है वो बता देता हूँ मैं। वन जीरो जीरो थ्री when you take power 1/, आंसर इज, इसका एग्जैक्ट आंसर जो होता दैट इज 10.00999, सो दैट इज ऑलमोस्ट सेम ना, है कि नहीं? है कि नहीं? सही है? अरे बोलो यार कुछ तो, कुछ नया सीख रहे हो कि बस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, समझा. So this is very useful tool to calculate some complex calculation के लिए यूज होता है ना. बाइनोमियल you will study. अभी आपने मैथमेटिक्स में बाइनोमियल नहीं पढ़ा है ना? अभी नहीं पढ़ा है ना? No, sir. ठीक है, you will study binomial expansion in mathematics, but meanwhile physics में तो सब कुछ day one से you have to apply. तो बाइनोमियल you can apply like this है ना, जैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, सबका नोट हो गया? नोट हो गया सबका? Sir, wait. चलो सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चन. ये तो मैंने करा दिए, दो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इनको बताओ कैसे करेंगे. फर्स्ट इज 993 to the power 1/3. Second is 1008 to the power 2/3. Calculate final answer using binomial. Apply binomial है ना. शुरू हो जाओ, आ जाओ. तो फर्स्ट वन आंसर बताओ कितना आया था. फर्स्ट वन 30.03. चलो चेक करते हैं. वी विल गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. ठीक है, वी विल सी दैट योर आंसर्स मैच. किसी और का भी आ रहा है? ऐसा नहीं आ रहा है? चलो 993 को यू कैन राइट 1000 minus 7 to the power 1/3. इससे 1000 कॉमन ले सकते हो. व्हेन यू टेक आउट 1000 कॉमन यू हैव टू अप्लाई द पावर 1 minus 7/1000 का पावर 1/3. So final answer will be, applying the binomial, this will be 10 and 1 minus 1/3 will land here 7/1000. फाइनल आंसर कितना आएगा देख लो. 10 minus 7/300 कितना आता है अप्रोक्सीमेटली? कितना आता है? 3000 minus 7, it will be 2993/300. So approximately ये आएगा 9.9. then approximately it is 9.98 है ना. approximately सही आ रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है? बोलो. वैसे तो ये इतना आएगा, वैसे ही इतना आएगा 9.9.7. फिर उसके बाद उधर गया 7 के बाद 6. ठीक है, फिर 6 ऐसे बार लग जाएगा है ना. सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 9.98.
क्या मैच कर रहा है आपका आंसर? किसी का मैच कर रहा है? सर हाँ सर आप एक बार कैलकुलेशन वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा 1000 to the power 1/3 अगर इधर कॉमन ले लेंगे तो 993 को यू कैन राइट ना 1000 - 7 आया ना? यस सर। तो बस द पावर विल लैंड 1/3 यहाँ से लैंड कर जाएगा, तो ये बाहर 10 हो जाएगा, 1 - 1/3 इंटू 7/1000, ठीक है? तो 7/1000 लिखोगे, व्हेन 10 ये मल्टीप्लाई सर होगा। 10 के हाँ से आया क्या 10? बेटा 10 का 1000 का पावर 1/3 is 10 ना, ओके है कि नहीं? क्लियर? और अगर आप कैलकुलेशन से करोगे, कैलकुलेटर से करोगे, तो आपका आंसर आएगा 997661201, है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली सेम। तो बाइनोमियल इज वेरी हेल्पफुल, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। 1008 का क्या आया बताओ? 1008 का पावर 2/3 क्या आया? अपना आंसर बताओ। तुम्हारा ये आंसर ये किसने निकाला था? 30.03 ये किसने निकाला था? मैंने उसको उल्टा कर दिया। पूरा गलत है, पूरी तरीके से शुद्ध गलत है ना, सही कर लो उसको, है ना? मैंने 990 + 3 कर दिया। नहीं नहीं, अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अभी समझ आया सर। 9 नहीं यार, इजी वाला लिया जाता है, ठीक है? इसमें भी हाँ इसमें अच्छा चलो, इसका मतलब तुम लोगों ने गलत सलत करके रखा है, ये समझ गया ना? सेकंड वाला करके बताओ मुझे, ठीक है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसको। यू हैव टू मेक 1008 at as 1000 plus 8 to the power 2/3। 1000 आप से ब्रैकेट में ले लेंगे, यू विल बी गेटिंग 2/3 पावर ऐसे, तो 1 + 8/1000 to the power 2/3। फिर यहाँ से 1000 का पावर 2/3 विल बिकम 100, और इसका ऐसे से रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है? समझा? यस सर। चलो सबका नोट हो गया? नोट हो गया? सर 1 यस सेकंड। Now we will apply this binomial किसमें? In last result, that is fourth one is last result, although एक और मैंने लिखवाया था z is equals to any power, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे z is equals to a by b को कैसे you will get the error, है ना, कैसे मिलेगा? So you can write a is equals to a naught plus minus delta a, b is equals to b naught plus minus delta b, z is equals to z naught plus minus delta z, and z naught is equals to a naught by b naught, ठीक है? So now you can write z is equals to z naught plus minus delta z, a is equals to a naught plus minus delta a, b is equals to b naught plus minus delta b, clear? So take out a naught बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा? 1 plus minus delta a by a naught डिवाइड बाय b naught, 1 plus minus delta b by b naught, है ना? You can take out common, तो यहाँ से a naught by b naught, a naught, अच्छा यहाँ से you can also take z naught को भी बाहर ले सकते हो, so when you take out z naught common, 1 plus minus delta z by z naught is equals to a naught by b naught, 1 plus minus delta a by a naught by 1 plus minus delta b by b naught, ऐसे इस तरीके से। So a naught by b naught will get eliminated by z naught, so you can write 1 plus minus delta z by z naught is equals to 1 plus minus delta a by a naught, and you can also write, अच्छा इसको you can write 1 plus minus delta a by a naught, and नीचे वाले को 1 plus minus delta b by b naught. So when this denominator will come upward, तो क्या होगा? When it comes up, so you will be having the power, कैसा माइनस हो जाता है ना, ये पता है कि नहीं पता है? When you take 1 Yes, by sir. 2, so you can write 2 का पावर -1, ये आता है?
Yes, sir. चलो, Yes, sir. so that means you Yes, can sir. write 1 plus minus delta b by b naught to the power minus 1. Is it correct? Now using Yes. binomial, delta b is very less than, as delta b is error, so it's very less than b naught, है ना? So you can land this minus 1 यहाँ पे land करा सकते हो. So you will be having 1 plus minus delta a by a naught into में when this minus 1 will land here, only sign will change. कैसे? माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी बाय बी नॉट. ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड नॉट. Again when you multiply, so this the final result will be same, delta a by a naught प्लस, बस इतना फर्क आ जाएगा, जहाँ प्लस माइनस था वहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी बाय बी नॉट प्लस माइनस प्लस, you can take minus plus delta a into में delta b by a naught b naught. So you can neglect this term, and यहाँ पे 1 1 से कट जाएगा. So finally when you take only plus sign, जब plus sign लोगे, again you will get the same result, delta z by z naught is equals to delta a by a naught plus delta b by b naught. और you can write z naught a naught b naught को एक्चुअल में जो लिखते हैं वो लिखो, delta z by z is equals to delta a by a plus delta b by b. So doesn't matter whether it's multiplication or division, फाइनल में you will get the same result. ठीक है, क्योंकि when you take error को क्या लेंगे, मैक्सिमम, and you will always take plus sign. क्या लेंगे, plus sign, only plus sign will be there. क्लियर? चलो नोट कर लो पहले से, यहाँ से सारे स्टेप्स नोट कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे. ठीक है, तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट सेम ही आएगा. नाउ वी कैन कंक्लूड कि if expression is like z is equals to a plus b or z is equals to a minus b, so for both you will get the same result, delta z is equals to delta a plus delta b. ठीक है, and when you have z is equals to a into b or z is equals to a by b, then in that case you will get the same result and you will only get relative error. क्या मिलेगा, सिर्फ relative error मिलेगा, है ना, प्लस डेल्टा बी बाय. Yes, sir. समझ गए? क्लियर? Yes, तो sir. ये याद Clear. रखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम मिलेगा. समझ गए? क्लियर? चलो, इसके बाद लास्ट आता है किसी भी पावर का अगर होगा तब क्या होगा. ठीक है, तो वो ऐसा होगा, अभी तुमने देखा है बाइनोमियल में पावर लैंड कराते हैं, तो ये याद रखना, सपोज अगर लास्ट वाला जो है किसी भी पावर का होगा, फिफ्थ वन z इज इक्वल्स टू a to the power x, b to the power y, c to the power t ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, बस पावर लैंड कर जाएंगे, x y और t ये पावर है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाय z. लेकिन ये याद रखना कि एरर शुड बी लेस देन 10%, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, x इंटू में डेल्टा a बाय a प्लस y इंटू में डेल्टा b बाय b प्लस t इंटू में डेल्टा c बाय c. सिर्फ पावर लैंड कर जाएंगी, है ना, एरर के साथ. ठीक है, पावर लैंड कर जाएंगी, तो इसका ये रहेगा, है ना. विदा चाहो तो बाइनोमियल करके देख लो, लेकिन पूरा करने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा है तो सीधे पावर विल लैंड. ठीक है, तो एरर में बस इतना ही है, ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छा, अगर ऐसा दिया है, सपोज इफ इट इज गिवन लाइक दिस, एक और एग्जांपल ऐसे दे दिया जाए, क्वेश्चन कुछ और दे दें कि z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b का क्यूब c की पावर 5, तो यू कैन ऑल्सो राइट a स्क्वायर b क्यूब c की पावर -5. लेकिन दैट डजंट मैटर कि -5 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा. वेन एवर यू टेक एरर प्लस साइन ही लेना है और कुछ लेना ही नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा a बाय a प्लस 3 डेल्टा b बाय b
आना तो चाहिए यहाँ पे माइनस 5 डेल्टा सी बाय सी, लेकिन व्हेनेवर यू टेक एरर यू विल टेक ओनली प्लस साइन। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट एरर। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा टाइम लेके उसको और करा दूंगा। तो अब आपको सब कुछ करके आना है पूरा, जो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है वो कम्प्लीटली पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। और नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर सिग्निफिकेंट फिगर्स और आपका क्या राउंडिंग ऑफ वाला। ठीक है डायमेंशन की एक्सरसाइज नहीं कराए क्या बेटा? डायमेंशन की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले थे। सब कुछ करेंगे पूरा। ठीक है, आप थ्योरी क्लास यही रखेंगे।